So probably assuming के सबको basic derivatives आता होगा, but from my side, let me just put it quickly. Y and y dash. Y dash is your dy by dx, and its authentic notation you can always use y dash for your dy by dx, and second derivative के लिए y double dash. So if your function, no, y is some function of x, let's presume that way. So if your function turns up constant, then the derivative is 0. dy by dx or y dash is 0. If x, then it's 1. If x square, it's 2x. If the function is x cube, then it's going to be 3x square. If your function is x raised to n, it's going to be nx raised to n minus 1. If it is root x, it's going to be 1 upon 2 root x. Log x, it's going to be 1 upon x. E raised to x ka e raised to x. And then a raised to x, it's going to be a raised to x log a. So these are the basic functions. So if it is 2 raised to x, it's going to be 2 raised to x log 2. 3 raised to x or 3 raised to x log 3. So these are the basic functions ka no derivatives. Then we need to support some product rules. We need a support of product rules and quotient rule also. So probably आपका product rule ऐसे कुछ जा रहा है. If your y is a function, now 2 raised to x ka 2 raised to x log 2, 3 raised to x ka 3 raised to x log 3, and so on. So that's how we work. Now coming to product rule, y equal to u dot v means it's a product of two functions. So assuming ke u and v are functions of x, so we happen to go dy by dx or y dash. It's going to be first into the derivative of second function plus second function into the derivative of first function, which I feel everybody should be knowing. But I always in my class also I sing it in a thoda sa slightly eccentric way. First deri second plus second deri first. So probably first function into derivative of second function plus second function, tab tak to class khatam ho gaya. So first deri second plus second deri first. So those who are new can just get acquainted to this language. First deri second plus second deri first. If your functions happen to land into product, making it a y function. So now similarly you have a quotient rule, y equal to u upon v. So we call this as the functions are placed in the quotient, just like the previous one functions were placed in the product. तो आपका अगर quotient rule है, then the y dash, of course your dy by dx happens to go v square. So मैं पहले हमेशा डिनोमिनेटर भर देता है v square. Now numerator v deri u minus u deri v. So can I go one more time? Y is u upon v. We apply the quotient rule. Y dash, the dy by dx. It happens to go v square in the denominator. V, it starts with numerator also start with the denominator. V deri u minus u deri v. So जब sum आएगा तब we'll rehearse it multiple times. Now, okay. Chapter 3, differentiation as per the schedule. Once again, okay, you will see multiple times on the page मैंने question वही लिखा हुआ है, ताकि we did not go back and front ऐसा बार बार. No, it just troubles your eyes. Solution का भी break हो जाता है. मैं आपको वापस क्वेश्चन में लेके जा, देखो ऐसा लिखा था वहाँ. तो क्वेश्चन ऑन द पेज इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, ताकि क्वेश्चन हमारे सामने रहे, जस्ट लाइक द एग्जाम पेपर. आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो क्वेश्चन इज ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, व्हाट्स द इश्यू विद द फर्स्ट सम? चल देखते हैं. सो y इज इक्वल टू x रेज टू e रेज टू x. नाउ आई नीड टू जस्ट चेक इन के ये किसके साथ मैच हुआ. x रेज टू n फ्लॉप, वो आपका e रेज टू x है, वो n नहीं है. सो वी हैव अ फंक्शन इन द न्यूमरेटर, इन द इंडेक्स. x के पावर में फंक्शन आ गया, सो यू कैन ट्रीट दैट एज x रेज टू n. सो नाउ नो अदर वे, वी हैव टू टेक log, क्योंकि log लेने से वो पावर नीचे आ जाएगा. तो आई से टेकिंग log on both the sides. This line has to be punched over there. Taking log on both the sides. So log y is equal to e raised to x power falls down log x. Now I saw the product. I am excited to differentiate. So differentiating with respect to x, you need to punch that. Board exam है ना, तो they need few things over there as it is. So taking log on both sides, and you'll be seeing me, leaving lines in between. So you can decide that way. पूरा पेज एक सम के लिए, 2 पेज ले एक सम के लिए.
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log y का 1/y हो गया और y का डेरी। अब ये तू बोलेगा ये क्या हो गया, चेन रूल, डेरिवेटिव सबकी मारते हैं। पहले log का देखा तो log x इज 1/x, तो ही गोज 1/y। फिर आगे उसने y को देखा तो y का डेरी, y डैश, और यू में राइट dy by dx एज वॉट यू विश टू राइट, बट y का डेरी इट्स इक्वल टू, सामने प्रोडक्ट देखा तो फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट। ओके, बिफोर आई फॉरगेट 1/y, उसी तरफ मैं y को यहाँ लेके आया, बिकॉज आई एम हियर टू फाइंड y डैश dy by dx। e raised to x log x का डेरी 1/x प्लस log x e raised to x का डेरी e raised to x। बिफोर क्लोजिंग द ब्रैकेट ही मैं डिसाइड कर गया था कि मैं e raised to x को कॉमन ले लेगा। सो फाइनली y के साथ e raised to x भी बाहर आ गया, 1/x प्लस log x हो गया। It's time to finish off in the standard notation. The dy by dx is equal to y, आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है, so you need to copy your y. So it's x raised to e raised to x and बाजू में और एक e raised to x, 1/x plus log x, that ends your answer. कुछ हाईलाइट नहीं, नथिंग, नो ऐसा आंसर बांसर कुछ नहीं, ये हो गया कॉम्पैक्ट एकदम। नाउ जुलाई 24 फेब 25, x रेज टू x देखा तो मन में log आ गया, बिकॉज शी डजंट फिट द बिल ऑफ x रेज टू n, बट देन आई कांट गिव log। सर अभी ऊपर तो बिंदास आपने log दे दिया था, वो प्लस आ गया ना बाजू। सो व्हेन आई थिंक ऑफ गिविंग log टू a प्लस b, दे सकता है, दे भी दिया, वो log अंदर जाएगा नहीं, होममेड रूल से तो अंदर भेज दिया log a प्लस log b, अलग बात है। log का सिंपल एक ना आर्ग्यूमेंट था, आई एम नॉट मेंट फॉर प्लस माइनस, आई एम मेंट फॉर इनटू। वो सारी चीजें जिसको जो आपको डिफिकल्ट लगती थी, इनटू था, अपॉन था, रेस टू था, वो सब के लिए मैं बना है। प्लस माइनस के लिए आप जैसे तुच्छ प्राणी बने, ऐसा वो लॉग हमको बोलता है, मुझे बोला था, अभी आपका पता नहीं। सो व्हेन आई पुट लॉग ऑन बोथ साइड, तो सामने की तरफ log ऑफ a प्लस बी एंड द प्लस इज स्टॉपिंग log फ्रॉम कमिंग इन, तो log अगर अंदर जाएगा नहीं तो x रेस टू x को छुएगा कैसे, द होल पर्पस वाज डिफिटेड। तो आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। So I started my solution y equal to x raised to x plus a raised to x. Then I said forget it. I need log but I can't take log. Plus is stopping me from taking log. मैं log ले सकता है लेकिन log अंदर जा नहीं सकता. So now I said कि चलो u is equal to x raised to x. वो x raised to x को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, अलग से उसको सॉल्व कर लेते हैं. So I have to give some name ना, क्योंकि मुझे log लेने के लिए टू साइड्स चाहिए, तो मैंने उस फंक्शन को एक नाम दे दिया u. So taking log on both sides, all lines have to come in properly. Taking log on both side में log u equal to x log x, पावर फॉल्स डाउन हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x चालू हो गया, 1/u भी हो गया और फिर u का डेरी भी हो गया, 1/u हो गया और u का डेरी हो गया। इट्स इक्वल टू, सामने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट। ओके, यू कैन सी आई एम कॉन्शियसली लिविंग वन लाइन। सो फाइनली मैं 1/u यही भूल जाऊं, उससे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप में u को वहां लेके, आई डोंट वेट द राइट हैंड साइड टू गेट ओवर, बिकॉज बाय द टाइम आई मे फॉरगेट कि 1/u चल रहा था। सो मैं u को यहाँ लेके आया, फुल सम गोइंग इन द ब्रैकेट x log x का 1/x प्लस log x एंड x का डेरी 1 हो गया, अंदर का x भी कट होके आपका 1 हो गया। इट्स टाइम टू नो जस्ट पुट द फाइनल वर्जन, द du by dx, स्टैंडर्ड नोटेशन, आपका x रेज टू x आ गया, u चेक, आपने u को x रेज टू x लिखा था, एंड देन 1 प्लस log x, सो दिस इज अ पार्ट आंसर। आपका y का एक हिस्सा जो हटीला था वो आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स ओपन अप द y। सो सामने में स्क्रॉल बैक क्यों करेगा, मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन को पेज पे रखा हुआ है, वो सामने दिख रहा है। इट्स x रेज टू x प्लस a रेज टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सर तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, मैं u के साथ डील कर रहा था, x रेज टू x पार्ट ऑफ द y which could not have been dealt if it was in y because it needed log, और वो प्लस में खड़ा था बाजू वाला, मैं log देता तो भी उसके पास नहीं पहुंचता, वो प्लस उसे रोक देता, डोंट एंटर प्लीज, और लोग बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपके लिए बना ही नहीं था, मैं नहीं आता अंदर, तो आप तो धरे के धरे रह जाते। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, द dy by dx,
फाइनल वर्जन है ना आपका। x रेस टू x का आंसर अभी भी ऊपर दिख रहा है डेरिवेटिव उसका, x रेस टू x 1 प्लस लॉग x प्लस इसका ऑनलाइन a रेस टू x का a रेस टू x लॉग a, सॉरी वो कैसे डेरिवेटिव ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, x रेस टू x का तो आंसर ऊपर से लेके आया, a रेस टू x का आंसर तभी के तभी हॉट पेन पे उतार के रख दिया, a रेस टू x लॉग a, उसके लिए v थोड़ी बोलेगा, फुकट को इसको इतना बड़ा दर्जा क्यों दूं, तू v बन जा, अब तेरा डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dv by dx इक्वल टू a रेस टू x log a, जबकि इट कुड हैव बीन निप्ट आउट ओवर हियर ओनली। सर मार्क कटिंग किस खुशी का, where something is going wrong in that. Now coming back over here into the next one, आपकी इच्छा पूरी हो गई, March 20. So now y is equal to x raised to x plus 7x minus 1 raised to x, दोनों को log चाहिए, both are asking for log, क्योंकि both are x raised to something और वो x raised to n नहीं, so I can't give them the treatment of x raised to n. The only way to get out of that is taking log. दोनों को log चाहिए लेकिन log दे नहीं सकता, because taking log में वो प्लस बोलेगा log अंदर आएगा नहीं, माने दोनों के पास नहीं आएगा, दोनों ही अटक जाएंगे. So right now let's get out, पहले एक को निपटाते, use x raised to x, taking log on both side. मान ले कहानी खत्म हो गई, आपका du by dx आ गया. सर ये क्या हो गया, अभी अभी सॉल्व किया, तो why should I repeat that thing and waste your time one more time? Check, अभी अभी हमने नो सॉल्व किया था ये, so yes that was ready, copy paste. Now next one आपका v आ गया 7x minus 1 raised to x, can't help it, वापस taking log on both side, log v is equal to, जब log 7x minus 1 के पास पहुंचा सीधा उसका पावर नीचे आके गिर गया. Now we start differentiating with respect to x, 1 upon v और v का डेरी, सुना 1 upon v and then v का डेरी, सामने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरी सेकंड, फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट, डेरी फर्स्ट. ओके, बिफोर आई फॉरगेट वी, मैं रिपीटेडली बोलता है बिफोर आई फॉरगेट वी मैंने सामने ले आया, बाकी पूरा सोल्यूशन ब्रैकेट में, x तो है, log 7x minus 1 का डेरी 1 upon 7x minus 1, किथे जा रहे हो, किथे जा रहे हो, उसके बाद 7x minus 1 का डेरी 7, log y 1 upon y और फिर y का डेरी, log u 1 upon u और बाद में u का डेरी, log v 1 upon v और उसका डेरी, तो log 7x minus 1 1 upon 7x minus 1 और फिर 7x minus 1 का डेरी, तो 7x minus 1 का डेरी 7 into 1 minus 1 का 0, कॉन्स्टेंट्स को 0, प्लस log 7x minus 1 और बाजू में 1. फाइनली आपका यहाँ पे what I'll do is I'll just replace it dv by dx, presuming के लास्ट लाइन चल रहा है, so ऐसा ना हो कि dv by dx लिखने के लिए मुझे पूरा वापस कॉपी करना पड़े. v भी मैंने कॉपी कर लिया, 7x minus 1 raised to x, नो आपको फेथ रखना होगा, वो मैंने ओवर राइटिंग कर दी ना क्वेश्चन पे, 7 और x मिलके 7x हो गया अपॉन 7x minus 1 प्लस नथिंग, नो नथिंग वाज चेंज्ड ओवर हियर, जस्ट खाली प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया. नाउ फाइनली यू थॉट के सम इज ओवर, ओहो 4 मार्क में 1 मार्क फ्री में दे के आया, उसको खुद भी नहीं कमाया, किसी और को भी नहीं दिया, गवा दिया हमने. So now finally the y is equal to x raised to x, the y was equal to that. So now let's figure out the dy by dx. I just kept writing differentiating with respect to x because हम actually यहाँ पे differentiate नहीं कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ copy कर रहे थे answers. But still if you want you can write it on the safer side, क्योंकि y को तो differentiate with respect to x करेंगे तभी हम y dash पे पहुँचते हैं ना. तो आपका कॉपी किया आंसर x raised to x 1 plus log x, सॉरी मुझे थोड़ा सा याद रह गया आंसर, प्लस सेकेंड पार्ट का आंसर अभी ऊपर दिख रहा है 7x minus 1 the whole raised to x in the bracket, please copy that bracket over here and your sum gets over. Now July 25, I hope we are just looking at the most critical important area right now. आजो पहले वाले को log चाहिए, सर आप फटाक से कैसे डिसाइड कर लेते हो, log x raised to x है, you can't give it a treatment of x raised to n, क्योंकि वो पावर में n नहीं है, x है ना, तो आप उसे x raised to n का डेरिवेटिव का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो, बाजू वाले को तो देना ही है, वो ऑनलाइन देंगे. फिलहाल इसको निपटाने के लिए वी स्टार्टेड द सोल्यूशन विद y, में हमारा फंक्शन ये है ऐसा बोल के हमने शुरू किया.
अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट वन नीड्स लॉग बट वी कांट टेक लॉग ऑन बोथ साइड बिकॉज ऑफ प्लस वाला वो लॉग को अंदर आने नहीं देगा. द पर्पस वॉज डिफीटेड. तो हम एक काम करेंगे, हम उस log x रेज टू x जिसको एक अलग सा ट्रीटमेंट चाहिए उसे अलग कर लेते हैं u बोल के. नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सो log u हो गया. इट्स वर्थ वॉचिंग दिस सम. जब log आपका log x के पास आया, उसने देखा उसका पावर उसको नीचे गिराया. जब log आपका log x के पास आया, उसका पावर नीचे गिरा. आपने डिफरेंशिएटिंग एक्साइटमेंट में शुरू कर दिया. 1/u और u का डेरी, वो शब्द मुंह में चल ही रहे थे. 1/u और u का डेरी. यहाँ आपने देखा प्रोडक्ट, एक फंक्शन एक x से और एक फंक्शन log ऑफ log x से. इट लुक्स लाइक log u log y. So first dairy second, okay, first dairy second, and then comes plus second and dairy first. हाश मेरा क्वेश्चन बच गया. Now before I forget, see using the same words, before I forget मैं u को सामने ले आया, अंदर काम चालू हो गया x. I am seeing it log y, 1/y और y का डेरी माने 1/log x और फिर log x का डेरी 1/x. इतने बड़े सम में एक चेन रूल खाना लाजमी है. इशारे से कोई समझा होगा तो अच्छा है. इतना बड़ा सम में एक चेन रूल, नो, the exact step was 1/log x into the derivative of log x. If you remember the chain rule, the composite rule, the very first exercise what you learned in your 12th standard. So वो मैं थोड़ा सा खाया और वो लाजमी है. प्लस log of log x डॉट 1. फाइनली आपका इधर भी x कट हो गया. So du by dx. So I thought I am coming to the last line. So let me just fix in the standard notations, the more frequently used written notations. So u dash में nothing is wrong. U dash is perfect. माने जिसको मालूम है कि एप्लीकेशन में हम f dash x बोलते हैं, उसको ये सब मालूम होगा. But then few always doubt है ऐसा कैसा u dash बीच में ऐसा. अपन तो du by dx तो लिखा ना अभी u कॉपी करने का है. u मुझे बाजू में दिख रहा है, उधर व्हाइट पैच पे दिख रहा है ना. आपने log x रेज टू x को u बोला था. And then 1/log x plus log of log x. This was your du by dx, a part derivative of your y, which unnecessarily तो नहीं बोल सकते, but by force we had to solve it separately because he demanded some special treatments, the u part. Now coming back to my y, which is log x the whole raised to x plus x raised to 5. The question, differentiating with respect to x, we'll have to write it. The dy by dx is equal to, पहले तो इसका आंसर मेरा ऊपर रेडी है, log x the whole raised to x and kindly copy the bracket. आप ऐसी कोई भी हिमाकत वहां ना करे. ऐसा एरो मार्क करके रख दिया. माना आप उसे कमांड करते, ए समझ ले तू, ये ऊपर का लिखा हुआ है इसमें, चल मार्क्स दे दे. उसे कहाँ कुछ बोलना है. दुश्मन वो बड़ा ना जिसने बिना कुछ बोले हमें मार दिया, बिना कोई शोर, और पता भी नहीं चला. हमें दर्द बहुत हुआ बाद में. प्लस ऑनलाइन x raised to 5 is 5x raised to 4. प्लीज चेक इट प्लीज. कोई आंसर, कोई हाईलाइट कुछ भी नहीं है. इफ यू वांट यू कैन सी दिस. इतना ब्यूटीफुल हैंड रिटन चाहिए था ना तेरे को. ये देख हैंड रिटन इतना ब्यूटीफुल. फास्ट राइटिंग कर रहा है तो भी इतना अच्छा. मैंने मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ लीविंग लाइन्स इन बिटवीन. व्हाट माने दूर से रख के भी बोलेगा परफेक्ट छात्र. And when he enjoys checking your paper, na, he doesn't object to that, no things which should be objected to. That's the benefit. नहीं तो फिर आपका पेपर है ना कैरेक्टर असैसिनेशन में चले जाता है. भी पता नहीं कहाँ से आया है वो. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर. ओह जुलाई 23 सितंबर 21. बहुत लोग को इसका आंसर याद भी रहता है, लेकिन फायदा क्या हुआ आंसर याद रखने का. शो दैट दिया हुआ है. एमसीक्यू में आया तो फायदा हो जाता है. एंड एट टाइम्स दे कैन आस्क यू दिस सम एमसीक्यू में. तब ये आंसर याद होना चाहिए कि ऐसे सब आंसर्स 7 9 है तो सामने 16 है, 5 7 है तो सामने 12 है, 3 6 है तो सामने 9 है, m और n पावर्स है तो सामने m प्लस n लिखा है, a और b लिखा है तो सामने a प्लस b लिखा हुआ है. इन ऑल सच केसेस द dy by dx टर्न्स आउट टू बी y upon x. बट नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का सम. सो मैं स्टार्ट किया x रेज टू 7 डॉट y रेज टू 9 इज गिवन टू मी एज x प्लस y द होल रेज टू 16. मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया. अभी यहाँ है ना द लर्नर्स, द बिगनर्स, दे ऑलवेज ऑब्जेक्ट है
इसमें काय को तुम लिया? अभी तक तुम क्या बोला था लॉग के लिए? वो रेस टू फंक्शन है तो हम इसे एक्स रेस टू एन का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यहाँ तो दे सकते ना, यस करेक्ट, यहाँ दे सकते हैं, बट देन सम रियली बिकम सिंपल व्हेन यू गो फॉर नो लॉग। व्हाट ऑल सिचुएशंस फेवर इन दिस सम फॉर लॉग? एक तो मैंने इंटू देखा, लॉग तो इंटू के लिए बना था, पावर के लिए भी बना था, बस तो फिर मैं तो हो गया, बोला इतना सारा तो मेरे को लॉग का बेनिफिट दिख रहा है तो व्हाई नॉट यूज लॉग। सो 7 log x इंटू का प्लस, सुना तूने? पावर नीचे करता है वो कॉमन फिनोमिना है, इंटू का प्लस 9 log y एंड सामने 16 log x प्लस y। खबरदार सर, क्या हो गया? खबरदार बोलेगा तो वो log x प्लस y अंदर नहीं जाएगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आई हम्बली रिक्वेस्ट के प्लीज डू नॉट पुट ऑन एंड ऑफ योर वीडियो। माने वी आर ऑल लाइक नो क्वाइट एज पीपल, माने 16-17 कोई खेल कूद की उम्र है, लेकिन नॉट इन दिस एरियाज। व्हाट्स द पॉइंट डूइंग दैट? मैं इरिटेट होके, मुझे आपको कोई फायदा नहीं होने। हाँ, फिजिकली मिलते हम लोग तो जैसे हमने अभी 2 दिन पहले हादसा देखा, तो आप भी शायद वो पेन निकाल के सब, तो फायदा है ना, बाकी क्या फायदा है? बाकी कोई फायदा नहीं है। इट डजंट हर्ट मी एट ऑल। सो कमिंग सिंस 30 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, nothing should hurt us. So please, there is no फायदा, माने no point doing all those things. So coming back, एक humble request था, माने बाकी जिसे समझना है ठीक है, बेनिफिट ले लो ये सब चीज का। और मैं बोलूं कि यार खिल्ली उड़ानी है तो हम उम्र के लोग होने चाहिए। आप अपने उम्र वाले लोग के साथ थोड़ी खिल्ली उड़ा रहे हो, गर्ल्स बॉयज की, बॉयज गर्ल्स की, अच्छा लगता है। वी ऑल एंजॉय ऑल दोस थिंग्स, बट ऑफ द सेम एज। इवन वी डू इट बट एट द सेम एज। तुम्हारे साथ मजाक मस्ती करूंगा, क्या फायदा है, क्या मजा आएगा मेरे? Now coming back, no, that's where many people go wrong in our profession. Now coming back over here, taking log on both the sides, बड़ी बात बोल गया। अभी डेरिवेटिव चालू करते हैं, अभी हमने हॉट पेन पे सबको रख दिया है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 7 है 1 अपॉन एक्स है, 9 खड़ा है, ना 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 ना, 1 अपॉन वाई कहाँ दौड़ी, वाई का कौन लेके, 1 अपॉन वाई, वाई का डेरी। सर तो लॉग एक्स में आपको वो याद नहीं आता है, 1 अपॉन एक्स और एक्स का डेरी याद आता है ना, मगर एक्स गरीब, उसका डेरी 1। बाकी लॉग वाई है 1 अपॉन वाई और वाई का डेरी। चल अगला आगे भी 16 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और फिर एक्स प्लस वाई का डेरी, एक्स प्लस वाई का डेरी। नाउ गोइंग आगे थोड़ा सा अरेंजमेंट, 7 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई और वाई डैश इक्वल टू 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, डेरी अंदर जा रहा है, एक्स का 1 और वाई का डेरी वाई डैश, वाई का डेरी वाई डैश। राइटिंग वाई डैश रियली हेल्प्स यू, इट कीप्स यू एकदम सॉफ्ट स्मूथ। तो dy by dx चलते ही जा रहा है, 5-5-6 स्टेप। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट। सर होल प्लान क्या है? ये है पैरामीटर, सॉरी ये है इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्स एंड वाई थ्रू आउट सब जगह स्प्रेड आउट है। नहीं, नॉर्मली अपने इनिशियल सम्स क्या थे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इवन इन टेक्स्ट बुक्स। फिर ये जंगली लोग आने लगे, ऑल फैमिली टुगेदर, एक्स और वाई साथ में ही बैठे। सो दिस आर फंक्शंस इन एक्स वाई, एफ एक्स वाई बोलते हैं। अर्लियर जो क्वेश्चन थे वो एफ एक्स टाइप थे। फंक्शन इन एक्स, दिस इज फंक्शन इन एक्स वाई, एज यू कैन सी द क्वेश्चन, एक्स और वाई दोनों साथ में ही बैठे हैं करके dy by dx का आंसर भी दोनों साथ में ही आ रहे हैं, y और x। सो वी कॉल देम एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इसका सिंपल एक थीम है वर्किंग का, अलग अलग जगह y डैश आएगा, आप सारे y डैश को एक तरफ इकट्ठा करें, बाकी सबको दूसरी तरफ इकट्ठा करें, y डैश आ जाएगा। दिस जस्ट राइम विथ माई स्कूल का थीम। मैं x का वैल्यू ढूंढ रहा था, इक्वेशन में बहुत सारे जगह अलग अलग x था। I started collecting x on one side and rest all terms I dumped it on the other side. In 2 or 3 steps I got my x. So same way, जब तक तो ब्रैकेट नहीं खोलेगा तो y डैश इकट्ठा नहीं कर पाएगा। सो कीप इट नेचुरल, 7 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई और y का डैश, सामने 16 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस वाई और y का डैश। नाउ मेकिंग वन ब्रैकेट ऑफ y डैश, और बाकी यहाँ जो दूसरे टर्म्स सामने आएंगे, y डैश में इकट्ठा हो रहा है 9 अपॉन वाई तो ऑलरेडी था, उस तरह से इस तरफ आ रहा है -16 अपॉन एक्स प्लस वाई। आई होप यू ऑल वुड एग्री टू दैट।
अब बाकी टर्म्स में 16 अपन एक्स प्लस वाई तो बेचारा सामने ही खड़ा था, लेकिन यहाँ से 7 अपन एक्स को वहां फेंकना होगा. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 9y minus 16y upon y into x plus y the LCM and the y dash. सावधान, 16x बहुत सावधान, minus 7x minus 7y, सुना, sign change, upon x and x plus y. Okay, the good work carries on. 9x minus 7y, you should be quick on that. 9y minus 16y upon y into x plus y and y dash is equal to 9x. सर कहाँ से आया? 16x minus 7x minus 7y upon x into x plus y. जैकपॉट लगा, ऐसा लगा, जीवन सार्थक हो गया. कटिंग ऑन बोथ साइड, 2/3 सामने भी 2/3 कट हो गई. सो नाउ फाइनली माय dy by dx. सर अचानक आपको dy by dx, वो एंड में हमेशा ना साधु की तरह दिखता है, बीच में लुच्चागिरी करता है, एंड में साधु बन जाता है, फिर भी मोक्ष और मुक्ति मिलता है. आप एंड के कुछ साल एकदम साधु बन गए, संसार के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, भगवान के बाजू में स्थान मिलेगा. भगवान नहीं बनेगा, भगवान के बाजू में स्थान मिल जाएगा. dy by dx is y upon x. एक सिग्नेचर भी मार देंगे हम लोग प्रूव करके. Now coming back over here, so I'm not repeating the same sum for you, but now you got it. Now ये this says कि how important the sums are. March 23, July 25, March 13, July 15 लिखता तो भी स्टूडेंट एक बार बोलता है इतना पूरा ना क्या, अभी वापस पूछेंगे. Board says repetitive. Play smart. Ask your friends not to miss this. एक बार सुना हुआ रहता है. This is the prime time when almost all the students are in the confused state. ये जो 20 दिन है ना आपके, सॉरी जो भी माने 10, 12, 13 दिन जो रह गए हैं, दिस आर लिटरली वेरी कंफ्यूज स्टेट. शेड्यूल फॉलो होता ही नहीं इसमें, टेंशन बिल्ड होता है. सब लोग ऑल द बेस्ट, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. पेरेंट्स भी दिन में 4-4 बार, और फादर तो एकदम स्पेशली मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सब ना फोन करेगा, हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बोलो. ऑल बिल्डिंग टेंशंस. रिलैक्स. ये अटेंड करने का, सॉल्व अभी करना नहीं करना, फाइन. आई हैव जस्ट हर्ड इट, आई नो कि आई नीड टू नो प्रेस दिस इन माय लास्ट दैट नो इन बिटवीन का डेज जो आ रहा है. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, सुना होता है तो बहुत इजी हो जाता है रिप्रोड्यूस करना, नहीं तो ये सोल्यूशन सर्च करो, फिर वो रिदम में लाओ. अभी ये रिदम सेट हो रहा है. इट्स रियली बेनिफिशियल, सो प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस. कमिंग बैक ओवर हियर, वो ये यूट्यूब वाले बोलते हैं ना, आपको अगर ये पसंद आया, अभी मैं तो ये नहीं बोल सकता आपको ये पसंद आया, मगर डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड नो लाइक शेयर जो भी है, आई डोंट नो वो लैंग्वेज में सुनता बार बार, लेकिन मुझसे वो सब्सक्राइब शेयर लाइक वो जो भी है, तो प्लीज. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, अभी ये कौन आ गया पता नहीं, सब साथ में तो खड़े हैं. सो दिस आर इम्प्लिसिट फंक्शंस, और नाम को क्या करना है, दे आर एफ एक्स वाई, ऑल इन वन फैमिली. नॉर्मली आपका y इक्वल टू जो ऊपर था वो y वाज अ फंक्शन ऑफ x. राइट नाउ वी हैव गॉट fxy. ओके, चलो डेरिवेटिव स्टार्ट करना है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना ही है. x क्यूब का 3x² हो गया, y स्क्वायर का 2y और y का डेरी, log y का 1/y और y का डेरी, y स्क्वायर का 2y और y का डेरी. आगे प्रोडक्ट दिखा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकेंड डेरी फर्स्ट, 7 का डेरी 0. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फुल ना बोथ साइड होता है. नाउ 3x² प्लस 2y y का डैश प्लस xy डैश प्लस y, आई डोंट नो वो बाय मिस्टेक रिपीट हो गया लाइन. नाउ व्हाट इज द होल स्कीम, एक ही बार मन में बिठाना है. एक तरफ y डैश होगा, दूसरी तरफ अदर टर्म्स होगा, लेकिन राइट नाउ बिकॉज द एंटायर सम इज सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, I'll make one dibba of y dash and one more dibba to dump the other terms. Because all the terms are set on one side, I thought of collecting y dash on one bracket and other terms in other bracket. Now y dash में कौन आया, 2y plus x, check please. और बाकी टर्म्स 3x² plus y इसमें जाके बैठ गए.
वो पूरा ब्रैकेट सामने चले गया और ब्रैकेट सहित भेजोगे तो आपको सिंगल माइनस में काम हो जाएगा और वो वाला नीचे आ गया 2y प्लस एक्स और आपका dy बाई डी एक्स रेडी हो गया, साधु बन गया। मैंने बीच में एंजॉय किया सारी लफाटगिरी वाई डैश बोल बोल के ना, दैट रियली हेल्प्स यू। जस्ट ट्राई, इफ यू फील के नहीं 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 मेरा dy बाई डी एक्स अच्छा है तो जो है वही अच्छा है, यू टेक नो केयर ऑफ द सम्स, दैट्स ऑल। नाउ फिर से वापस से इट्स इम्प्लिसिट फंक्शन छोड़ना यार, all in one family x and y, it's fxy, family of x comma y, it's function in x and y. Now मैंने फंक्शन कॉपी किया, ऑलवेज रिमेंबर प्लीज कॉपी द फंक्शन फर्स्ट। धड़ाक से डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहा है वो सम तो पेपर में पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। Okay, let's get started. I can see a good product over here. So first into the deri of second, first deri second plus second, I am buying time. ये एक्स वाई जितना सिंपल नहीं कि धड़ 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 भाग जाएगा, तो आई वॉज बाइंग टाइम प्लस सेकेंड डेरी फर्स्ट, सामने फटाफट 2x हो गया, 2y और y का डेरी कितने जा रहा है, log y 1 अपॉन y, y का डेरी, y क्यूब 3y स्क्वायर, y का डेरी, रूट y 1 अपॉन 2 रूट y और y का डेरी, e रेस टू y और y का डेरी, y स्क्वायर 2y और y का डेरी। चल आगे वापस आ रहा है अभी, एक्स क्यूब 3y स्क्वायर और y का डेरी, थोड़ा टाइम अभी शाम को है ना, और y का डेरी, मम्मी कुछ बोले ना और y का डेरी, ऐसे ही छेड़ने के लिए अपना मम्मी रे, y क्यूब 3x स्क्वायर और सामने 2x माइनस 2y y डैश, काउंट डाउन प्लानिंग, because the terms are spread on both the sides I would like to take the benefit, y डैश इधर ले लेता हूँ, बाकी सब उधर ले लेता हूँ, आई एम गोइंग टू मेक वन y डैश का ब्रैकेट हो गया, बाकी सारे टर्म्स अदर साइड पे। चलो y डैश में कौन आ रहा है, 3x क्यूब y स्क्वायर, पेशेंस के साथ धुन के साथ 3x क्यूब y स्क्वायर, उधर से आ रही है प्लस 2y, सामने से आ रही है प्लस 2y, अब उधर एक गरीब तो ऑलरेडी खड़ा था 2x और ये जा रहा है वहां पे, लेकिन ये कैसा है दम, धुन कितनी बिखरी हुई है, y क्यूब 3x स्क्वायर, वाई नॉट राइट माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब, आराम से। एंड देन फाइनली द dy बाई डी एक्स में साधु बनने जा रहा है, 2x माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब द होल अपॉन 3x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2y, प्लीज चेक सर कुछ कॉमन आ जाए, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, मुझे भी दिख रहा था, नीचे से y कॉमन आ रहा है, कटा क्या, कुछ भी नहीं कटा, तो व्हाट्स द पॉइंट टेकिंग कॉमन, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग। हो सकता है कॉमन लेने में तो ब्रैकेट में कुछ मिस्टेक कर गया, तो जिस चीज का मार्क्स नहीं था उसका तो 1 मार्क उसको देख के आया। कॉमन तब लेना नो कंपल्सरी होता है व्हेन इट लीड्स टू सिंप्लीफिकेशंस, नाउ दिस नेवर लेड टू एनी सिंप्लीफिकेशन, ऊपर x और नीचे y तो कटा तो कुछ नहीं, ब्रैकेट में जो रह गया वो भी नहीं कट रहा है आपका, सो यू कैन ट्राई बट आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, चलो मार्च 19, e रेस टू x प्लस e रेस टू y और सामने e रेस टू x माइनस y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e रेस टू x का तो e रेस टू x, e रेस टू y का e रेस टू y और y का डेरी, इट हैज टू बी दैट स्मूथ। सास को भी पता नहीं चला कब तू खा गया, अरे मदर इन लॉ का सास नहीं बोल रहा, अपना ब्रीदिंग का सास, सास को भी पता नहीं चला कि तूने इनटू y का डेरी कब बोल दिया, तब कभी भी तेरा y का डेरी मिस नहीं होगा, log y 1 अपॉन y, y का डेरी, e रेस टू y y का डेरी, रूट y 1 अपॉन 2 रूट y, y का डेरी, y स्क्वायर 2y, y का डेरी, y क्यूब 3y स्क्वायर, y का डेरी। चल सामने वापस है e रेस टू x माइनस y, e रेस टू x माइनस y और x माइनस y का डेरी, आई हैव टू बाय टाइम बिकॉज दैट कैन नॉट बी पुट डाउन डायरेक्टली, y का डेरी तो मैं y डैश ही लिखेगा ना, डायरेक्टली बोलो तो इनडायरेक्टली बोलो y डैश ही लिखा जाएगा, मगर x माइनस y का डेरी नीड्स टाइम ना, आपको भी तो समय चाहिए ना क्या होगा इसमें, चलो डेरी अंदर जाएगा अभी, चलो टू प्रोनाउंस दैट थिंग, e रेस टू x माइनस y और x माइनस y का डेरी, सो e रेस टू x प्लस e रेस टू y, y डैश, पेशेंस का गेम है, e रेस टू x माइनस y, ब्रैकेट में 1 माइनस y का, x का 1, y का डेरी y डैश, जब तक ब्रैकेट नहीं खोलेगा तेरा सपना पूरा नहीं होगा, कौन सा सपना, तूने एक स्कीम बनाया ना, सारे y डैश यहाँ लूंगा बाकी सारे वहां लूंगा,
बचपन में सारे एक्स यहाँ लूंगा, बाकी टर्म्स वहां लूंगा, एक्स लाऊंगा यहाँ वाई डैश लाऊंगा। सो ब्रैकेट खोलना आपको कंपलसरी हो गया था। सो ई रेज टू एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई और वाई का डैश। Now collecting y dash on one side and rest of the terms on other side because it was spread on both the sides. So मेरा इधर e raised to y तो ऑलरेडी था, वहां से वो माइनस वाला इधर आके प्लस e raised to x माइनस y हो गया। सामने e raised to x माइनस y के पास माइनस e raised to x गया। फाइनली माई dy by dx was getting ready, तो मैं भी साधु हो गया। e raised to x minus y minus e raised to x upon e raised to y plus e raised to x minus y। the answer आ गई। Now coming to the next one, खतरनाक था। I think I missed out one attempt number इसके अंदर। I have seen it recently भी ये पेपर में वापस आते हो, because in one of the discussions I did tell in my classroom कि ये सब वापस अभी आया। एक बार लगा इतना बड़ा सम थोड़ी पूछ सकते। They always try to keep the papers humble, board papers very humble, because across Maharashtra वो all students of different categories with different coaching abilities, with different coaching provisions available to them. They need to take care of all of them. So ऐसा नहीं कि tier 1 city कि tier 2, they have to take care of all the interiors में classes थोड़ी होते सब। चलो okay, ready, fine, nice. Okay, now coming back over here, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। मैंने बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है ना, तो पहले काम करते हम डी वाई बाई डी एक्स तक। कैन somebody once again confirm the sound and the audio and the video please, if at all, माने in between में चेक कर लो तो बेटर है। भाई thank you so much। okay, thanks। चल मैंने बोला पहले डी वाई बाई डी एक्स तक तो पहुंच जाते हैं, बाद में सोचते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज वन मोर डेरिवेटिव, बट देन वी हैव नो फ्यू इश्यूज इन दैट। चल रेडी करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट वाज क्वाइट सिंपल। ए खड़ा है एक्स स्क्वायर का 2x, ए कांस्टेंट खड़ा है एक्स स्क्वायर का 2x, वैसा 2h खड़ा है, तो व्हाट यू सॉ वाज एक्स वाई द प्रोडक्ट। सो हमारा प्रोडक्ट रूल चालू हुआ, फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट। सो इट्स वेरी सिंपल ना, एक्स वाई जितना प्लेन है तो डू नॉट प्रोनाउंस द एंटायर रूल, दे कैन टेक दिस मच एनीवे, इट इज अ बिग सम। प्लस बी खड़ा है, ओ हो 2y और y का डेरी। मुझे हमेशा डर लगता है y का डेरी गया माने सम तेरा इसी लाइन से गया। सो लेट्स कम इन वंस अगेन, a हो गया 2x हो गया, 2h खड़ा है, अंदर प्रोडक्ट रूल का धमाका चालू हो गया, फर्स्ट डेरी सेकंड प्लस सेकंड डेरी फर्स्ट, प्लस b खड़ा है 2y y का डेरी। नाउ कमिंग बैक, आई गॉट वन बेनिफिट, सब में 2 था, मैं ऐसा थोड़ा कॉन्शियस था, मैं सब में 2 देखा, मैं बोला गेट आउट, 2a प्लस 2b इक्वल टू 0, कौन पालेगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। नाउ कमिंग बैक आगे आ रहे हैं, सो मैंने ब्रैकेट खोलना शुरू किया तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं सोचा। ओके, बी वाई वाई का डैश इक्वल टू 0। नाउ सेम फॉलो द थीम, हम बिकॉज ऑल द टर्म्स आर हैपनिंग ऑन वन साइड, हम एक ब्रैकेट बनाएंगे वाई डैश और दूसरा एक ब्रैकेट बनाएंगे बाकी सबको वहां रखने के लिए। वाई डैश में आया एच एक्स प्लस बी वाई, चेक प्लीज, और नॉन वाई डैश में आया ए एक्स प्लस एच वाई। नाउ टू रीच टू वाई डैश, फर्स्ट वो ब्रैकेट सामने चले गया, ए एक्स प्लस एच वाई पूरा ब्रैकेट गया करके, ब्रैकेट के बाद माइनस अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। सच बोलो तो इसको देख के तो मेरा हवा टाइट हो गई, प्लीज डोंट माइंड द लैंग्वेज। इस पे और एक डेरिवेटिव लेना है, पहले तो रूल ऑल्सो इट्स नॉट सो कंफर्टेबल विद मी, क्वोशंट रूल यू अपॉन मी। पूरे 12th में सिर्फ 3 सम में यूज हुआ, पूरे 12th के सिलेबस ऑफ डेरिवेटिव्स में 3 ही सम में यूज हुआ क्वोशंट रूल, सो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था।
if I am no just giving importance to the whole derivative except that वो मार्जिनल डिमांड वाला जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज, बाकी सब जगह प्रोडक्ट रूल ही यूज हुआ है, चेन रूल प्रोडक्ट। तो मैं बोला एक तो रूल भी जा रहा है ये क्वेश्चन रूल में, और फंक्शन देख ए एक्स प्लस एच वाई एच एक्स प्लस बी वाई, माने व्हेन आई एम गोइंग टू एनकाउंटर यू और वी का डेरिवेटिव उसमें आएगा वापस वाई डैश। एच वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एच खड़ा होगा, वाई का डेरी वाई डैश, और वाई डैश में मुझे वापस ये डालना पड़ेगा। बोला पागल है, आई एम गोइंग टू सेट अ लूप फॉर मी, नहीं मैं दलदल में फंस जाऊंगा। मैं बोला मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, ओनली थिंग बिफोर लीविंग दिस आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दिस, इफ एट ऑल ये सिंपल हो जाता है तो मैं और एक डेरिवेटिव मारता हूँ, नहीं तो मैं माफी दे दो ऐसा बोल के चले जाऊंगा नेक्स्ट सम के लिए। सो हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई वाई डैश, ओनली देन वी हैव द गट्स टू गो फॉर वाई डबल डैश। वाई डबल डैश माने डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके क्वेश्चन में इतना ही तो दिया है, माने व्हेन यू वांट टू रिवर्ट बैक तो आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो उतना ही लाइन है। तो आई स्टार्टेड माय एपिसोड 2, मैं इसको देखने लगा, मैं बोला इसमें कुछ छुपा है क्या, मगर लेट मी रिकलेक्ट पर्पस क्या है। वाई डैश इतनी अगली है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है वाई डबल डैश में जाने की, तो मैं बोला एक अटेम्प्ट देता हूँ वाई डैश को सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए क्वेश्चन में कुछ चीज छुपी है, तो क्वेश्चन की लाइन ही कितनी छोटी है आप देख लो। अब उसके अंदर कुछ छुपा है, तो मैंने देखा 2hxy को मैं तोड़ के hxy कर सकता था। इट्स एन अटेम्प्ट नो ऑफ ट्राइंग राइट नाउ। उसके बाद मैं देखा फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, ax प्लस hy आ गया, तब मेरे को ऐसा लगा कि नो विंग्स हैव गॉट अटैच्ड टू मी, आई जस्ट वांट टू फ्लाई बिकॉज ax प्लस hy उधर वो दिख रहा है y डैश में। सिमिलरली मैंने जब नेक्स्ट टू टर्म्स में y कॉमन लिया तो hx प्लस by, मैं बोला ऐसा लग रहा है भगवान स्वयं साथ चल रहे मेरे। अब आगे मैं दौड़ रहा हूँ x ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस वाई एच एक्स प्लस बी वाई, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। मुझे यहाँ तक तो पहुंचना होगा ना, और मैं पहुंच ही रहा हूँ। सो फाइनली ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज गोइंग टू गो माइनस वाई अपॉन एक्स। जस्ट अ सेकेंड, ओके, माइनस वाई अपॉन एक्स। बाद में मैं ऊपर खुशी से गया तो देखा तो इट वॉज माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एक्स। मैं बोला एक मिनट, फिर ये माइनस में यहाँ क्यों रखूं, इधर ही रख देता हूं। दैट मीन्स द एंटायर थिंग। सो राइट नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, I have found the replacement for our no ugly y dash. अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बुरा मान गया तो प्रॉब्लम है, but now the y by x can come in that no circle. So we go into the episode 3 where y dash is now replaced by y by x. The y dash का entire expression is replaced by y by x. So differentiating once again, remember the word is once again with respect to x. So y double dash, it's u upon v, so let's hit it. पहले v स्क्वायर आएगा, ओके, ऊपर v डेरी u, ओके, माइनस u डेरी v, check please. Can I go once again for that? Okay, we are going v square, it's quotient, the function is placed in quotient, so we need to apply the quotient rule for that. So it's going to go x square. Now done with that, we start ऊपर numerator में, numerator also starts with your denominator v डेरी u, so y का डेरी y dash minus u डेरी v, that's going to go 1. In place of y dash I can bring in my y upon x, check, upon x square. I repeat one more time. I could very well see कि कुछ जीरो नहीं हो रहा था, मैं बोला अभी जीरो कहाँ से, I made it simple बट वो जीरो कुछ भी नहीं हो रहा था। सो प्रॉब्लम था कि करे तो क्या करे, तो अचानक वो y dash ऊपर ही लिखा हुआ था मैंने, so I brought my y dash y upon x. Now she is going off, you are left with y minus y upon x square. Finally it's going to be 0 upon x square.
इट्स 0 एंड तब मैं सोचा कि थोड़ा साधु बन लेते हैं. Y double dash d square y by dx square equal to 0 and we say it's proved. It was a good dedicated 4 mark ka sum. So can we just scroll through the entire thing? We cannot just resolve the entire thing. It's quite feasible for you. No rewind play once you get the cloud ka recording or some other ways of recording. So we started with ax square 2x xy. We reached to y dash. No differentiate किया y dash का एक डिब्बा non y dash का एक डिब्बा and we reached to y dash. Y dash was so ugly के हिम्मत ही नहीं हुआ. Ugly नहीं बोल रहा हूँ, इतना tough था कि the expression was so डरावना कि I could not collect the guts to go for y double dash in the present state right now. So I thought कि या तो मैं leave the sum करूँ या तो फिर इसे simplify करने का एक attempt दूँ. इससे सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैड टू रिवर्ट बैक टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में तो एक ही लाइन था, तो मैं बोला एक लाइन में ज्यादा सोचने लायक तो कुछ होगा नहीं. स्प्लिट मारा, फैक्टराइज किया एंड आई रियली रीच टू दैट सर्कल मारा हुआ एक्सप्रेशन इन 3-4 स्टेप्स में. एंड आई सॉ कि इट वाज y अपॉन x. दैट वाज डैम सिंपल. y डैश y अपॉन x, u अपॉन v. इससे ज्यादा सिंपल u अपॉन v नहीं हो पाएगा. सो डिफरेंशिएटिंग वन मोर टाइम, यू आर गोइंग फॉर क्वोशिएंट रूल. नीचे v स्क्वायर, ऊपर v डेरी u माइनस u डेरी x डेरी y माइनस y डेरी x. एंड देन y डैश का मैं वो फटक से ऊपर से नीचे ले, बिकॉज एट द प्रेजेंट स्टेट y डबल डैश में 0 नहीं आ रहा. तब अचानक से क्लिक हुआ कि y डैश आई हैड टू सब्स्टिट्यूट y अपॉन x, और वहां से फिर y अपॉन x लाया, x कट हो गया, y गॉन, आंसर वाज 0. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन. नाउ ये सब आप है ना थोड़ा लॉक करके रखेंगे तो बेटर रहेगा. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट के या प्लीज थोड़ा सा, for the sake of people who are quite serious over here. Nobody would like to listen all this in the recordings यार. हमारा जनर ऐसा. Coming back over here. X raised to y is equal to e raised to x minus y. Without any element of doubt, this cannot be given a treatment of x raised to n. So I had to take log on both sides. Now you may have an argument के show that में था तो I would have taken it, but मैं show that ना भी देखूं तो भी मेरे को x raised to y को तो log देना ही था, because it cannot be classified as x raised to n function. So मैंने y log x कर दिया. Of course सामने भी जब log लगा तो x minus y log e, and all these logs are to the base e. So even she goes 1, log e is going 1. So finally y log x equal to x minus y. वहां मैं सोचा लेट्स रन थ्रू द सम नाउ, बिकॉज आई वाज डूइंग इम्प्लिसिट सम्स. तो मैं बोला चल फटाफट चालू करते प्रोडक्ट रूल. सामने तो सस्ता है, 1 माइनस वाई डैश. आई विल कलेक्ट वाई डैश ऑन वन साइड एंड अदर थिंग्स ऑन वन साइड. आई विल गेट टू माय वाई डैश. नसीब साथ दिया, सब कुछ बराबर गया तो शो दैट का आंसर दिखना चाहिए. तब अचानक शो दैट में मेरा नजर पड़ा. द आंसर इज एफ डैश एक्स. आई मीन टू से आपका डेरिवेटिव का आंसर कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स है. तो फिर सवाल भी आपका कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए. तो आपका फंक्शन भी फंक्शन इन एक्स होना चाहिए. नाउ शी इज नॉट फंक्शन इन एक्स वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ. शी इज एफ एक्स वाई. एक्स और वाई साथ में ही खड़े, दोनों तरफ देखो. सो टिल यू डोंट रीच टू दिस स्टेट, you should not even think of differentiating at all once also. Let me come back once again. मैंने ये पॉइंट जो मिस किया ना वो कभी इस आंसर पे नहीं आएगा. And this was in those days quite famous sum. So if the question setter happens to be from that age where he was setting sums over here, they keep recycling. इस बार मैं, इस बार तू, ऐसा. So it's their favorite coming in then. So he's bound to bring in this question because ये limited edition है हमारे टेक्स्ट बुक में. 2 sums ही ऐसे. So let's come back once again. Log लेने का कोई साइंटिफिक वजह नहीं था. X raised to n. This is not x raised to n. X raised to y. I had to take log. जैसे ही मैं वो लाइन पे पहुंचा, I thought of running through the solution. फटाफट y डैश मारता हूँ, इधर उधर कलेक्ट कर लेंगे और हो जाएगा. उधर मैं शो दैट में देखा कि वो शो दैट का dy by dx का आंसर कंप्लीटली f डैश x है. ऑल टर्म्स आर इन x. दैट्स ओनली पॉसिबल जब आपका क्वेश्चन फंक्शन भी ऑल इन एक्स हो. बट अपना अपन जहाँ खड़े हैं दिस प्लेस पे, इट्स नॉट एफ एक्स, इट्स राइट नाउ एफ एक्स वाई.
So till you don't make this line y equal to function of x, you should not even think of differentiating. In technical words, implicit को explicit करना है, but don't bother yourself with those words. f dash x पे आने के लिए सवाल fx होना चाहिए. Your function has to be purely in terms of x. It's not that way. So let's take efforts. हमें लाना है, हमें पहुंचना है y equal to fx पे. Only then we'll start differentiating. So let's collect y on one side. Y log x plus y is equal to x. Anybody would say y common. Log x plus 1 is equal to x. I am very close now to reaching to y. Y is equal to x upon 1 plus log x. हमें माफ करे. log x plus 1 जा रहा था, लेकिन फिर मैंने वो show that में 1 plus log x देखा, तो मैं बोला why not write it 1 plus log x only right now. वो good feeling आनी चाहिए ना. Now she is going u upon v. Benefit मेरा क्या था? Now she is purely fx. तो नाउ वेरी गुड चांस के मैं एफ डैश एक्स पे ही पहुंचूंगा. कहीं ऊपर मैंने डेरिवेटिव किया होता, यहाँ डेरिवेटिव किया होता तो एफ डैश एक्स वाई पे पहुंचता, बिकॉज मेरा स्टार्ट पॉइंट एफ एक्स वाई था, तो एंड पॉइंट एफ डैश एक्स वाई होगा. कल्याणम हो गया मेरा, तो सर्वनाशम हो गया. नाउ वाई डैश, सॉरी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स जिसके लिए उसे चांस मिले हमारा मार्क्स काटने के लिए. ही मे नॉट बट ही मे. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, नीचे वी स्क्वायर आ गया. खुशी की लहर दौड़ रही थी, सो दैट मुझे दिख भी रहा था. ऊपर वी डेरी यू, ऊपर वी एंड देन डेरी यू माइनस यू एंड देन डेरी वी. ओके, मूविंग इन. नाउ एक मिनट, वी स्क्वायर वी डेरी यू माइनस यू डेरी वी स्क्वायर वी डेरी यू माइनस यू डेरी वी. वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, बाजू वाला 1 माइनस एक्स इंटू, ओके, 1 का डेरी 0, log x का 1 अपॉन x, द होल अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर. y dash is equal to, leave lines. If you want to make your paper presentable without ruler pencil, just keep leaving lines and just maintain that margin. तो वो माने it will just give that great looks to your submissions. Now coming back over here, 1 plus log x ब्रैकेट खोल लिया, बार 1 ही था, माइनस एक्स एक्स कट होके भी 1 हो गया. सो फाइनली 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर. आई कैन वेरी वेल सी, मैं साधु बन गया. dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x the whole square. And that's where we say we have proved it. A classic sum which really mane, it's not everybody is good in derivatives, but he may or may be very good with this kind of sums, but वो तभी उसको क्लिक नहीं हुआ, अरे dy by dx में f dash x है, और वो तभी पॉसिबल है जब सवाल भी एफ एक्स हो. माने सवाल होना चाहिए y is function of x. Right now it is fxy. So let me collect y on one side, x on one side, and then I'll reach to y equal to fx, and then I'm going to start my f dash x. Then he or she is going to easily click the sum, which you now will be, probably. Now coming back over here. Parametric function. x function of t है, y function of t है, लेकिन हमें पहुंचना है dy by dx पे. So I can see the process is going to be, to reach to dy by dx, we are going to go dy by dt upon dx by dt. ऐसे ही लिखा है, it's not a part of any solution right now. Because x and y are functions of t, so I would like to go dy by dt, dx by dt. Done with that, I'll then reach to dy by dx. How? By dy by dt upon dx by dt. So all those who are familiar, they must be knowing that. But जिसे अभी भी समझ में आ रहा है तो he can. x और y functions of t है. So you are expecting x and y to change only when you change t. So आप dx by dt जाओगे, dy by dt जाओगे, वहां से आप पहुंचोगे dy by dx कैसे? ऐसे, dy by dt upon dx by dt. It will take you to dy by dx. Now we start. X equal to 2a t square. So now differentiating with respect to t. With respect to t, the dx by dt, it's going to be 2a खड़ा है t square का 2t. Finally, ये हो गया आपका 480. Book one full page. Even though you can finish off the sum in 5 lines, take a page na. Y is equal to 480. Done. Differentiating with respect to t. I stress with respect to t. How can you ask the y to change with respect to x? वो बोलेगा I am a function of t. I am made up of t. So if you want me to change, you have to change t. So by force also you have to go for dy by dt only. नहीं तो y बोलेगा I am not going to change.
सो 4a खड़ा है, t का 1 हो गया, x का 1 हुआ, यहाँ t का 1 हो जाता है. सो फाइनली 4a. नाउ टाइम टू रीच टू dy by dx. सामग्री रेडी है. It's going to be dy by dt upon dx by dt. Those who miss out writing that will lose 1 mark. ये जो तोड़ा ना, ये लिखना जो तोड़ा, वो इसका 1 मार्क जाता है. सो फाइनली dy by dt इज 4a, और मुझे याद है आंसर, और नीचे है dx by dt 4at. सो फाइनली 1 upon t आपका आंसर. दैट्स डन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अजीब लैंग्वेज है. एक काम कर, इन फंक्शंस को नाम देते हैं. वी ऑलवेज हैव नो फंक्शंस को नेम ना, y है, u है, v है. तो एक काम करते हैं, हम e रेस टू 4x को u बोलते हैं और e रेस टू 3x प्लस 5 को हम v बोलते हैं. नाउ रीड इन टर्म्स ऑफ u and v. सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, माने वो हमको सवाल पूछा du by dv. कैन आई कम बैक अगेन आफ्टर पुटिंग नेम्स u v? क्या पूछ रहा है वो? डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. दैट मीन्स ही इज आस्किंग मी टू फाइंड du by dv, जिसका पैसेज मुझे दिख रहा है du by dx upon dv by dx. सर ये फटाफट आपको कैसे क्लिक होते हैं? u is function of x, so you are going to ask u to change when you change x, du by dx. v function of x, you are going to ask v to change only when you change x, dv by dx. So let's do it. चल फटाफट. Let's start with u, e raised to 4x. Differentiating with respect to x. The du by dx, it's going to be e raised to 4x and 4x का डेरी, e raised to y और y का डेरी. So finally it's 4 e raised to 4x. Now coming to the v, she is e raised to 3x plus 5. वो बाजू में क्वेश्चन चल ही रहा है वापस से, रिपीटेड. Differentiating with respect to x. Why do you feel के v will change only when you change x? Because v is a function of x. So if at all you want v to change, you'll have to change x. If you want v to change, you will have to change x. So e raised to 3x plus 5 हो गया, e raised to y हो गया, y का डेरी कौन लेगा? Into the डेरी of 3x plus 5. So ऊपर मैं नहीं लिखा था, अभी मैं लिख के दिखाया. So finally it's going to be 3 e raised to 3x plus 5. 3x plus 5 का 3 into 1 plus 0. So 3, तो 3 आगे लिख दिया. Now the question was du by dv. Let me go back to the question. The question was differentiate u with respect to v, du by dv. Now du by dv का पैसेज मुझे बना लिया था du by dx upon dv by dx. Now bringing in du by dx का आंसर it was 4 e raised to 4x और dv by dx का आंसर था 3 e raised to. You have to be very careful in this part. हाँ, अक्सर लोग इंटरचेंज कर लेते हैं. सो प्लीज वो नो प्रॉपर डेरिवेटिव्स आना चाहिए वहां पे. माने पता चला du by dx में तो गाय में du by dx का रख दिया और du by dx में du by dx का आंसर रख दिया. नाउ इट्स अ रेयर थिंग बट हो जाता है ऐसे. 4/3 को तो हटाओ गेम से बाहर. सो फाइनली e raised to 4x and if I play indices तो -3x -5. I just played right now. a raised to m upon a raised to n था, it's a raised to m minus n. So answer turns up 4/3 e raised to x minus 5. That's your answer. आंसर कुछ नहीं लिखना. That's your answer. You can just close it कि भाई du by dv आया. क्लोजिंग पे भी और एक बार du by dv लिख देंगे. Now सेम सम. सो अगेन नो फेवरेट्स हो गया ना उनका. तो मार्च 19, मार्च 15. मार्च 15 वाला बोलेगा मार्च 19 में थोड़ी मार्च 15 का सम पूछेगा. तो फिर 26 वाला ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मार्च 19 का सम नहीं पूछ सकते हैं. तो x is equal to e raised to 3t है. I am going differentiating with respect to t. Why? Because x is function of t. So x will change only when you change t. e raised to y का e raised to y और y का डेरी, e raised to 3t और 3t का डेरी. ना इसमें जो लोग ये सब लिखते हैं वहां मुझे डर लगता है. लिखना चाहिए into the डेरी of 3t. Now that अगर उसके नजर में आ गया ना, he goes on a kill. मैंने बोलता है पूरा डेरिवेटिव करने के बाद a student is asking 3t to change by changing x and he feels it's going to change और वो आंसर 3 भी लिखता है उसका. That was wrong. dt. इसलिए I was stressing hard differentiating with respect to t. If you want 3t to change, you'll have to change t for that. So सावधान प्लीज everybody. ये छोटा मोटा मिस्टेक्स, और हम लोग घर सोचते हैं कि 95 आएगा फिर आता है 85, बट ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं. 3 e raised to 3t. ओके फाइन.
Now, y is equal to e raised to 4t plus 5. So we are dealing with the same sum, but ये सब बताने के लिए आपके लिए मैं ये वापस से कर रहे हैं. That was happening with respect to x. This is happening with respect to t. Differentiating with respect to t, once again you are expecting y to change only when you change t, for the simple rule that y was a function of t. So if at all y would change, he will change only when you change t. Now e raised to y का e raised to y और y का डेरी. So e raised to 4t plus 5 और 4t plus 5 का डेरी. You ask 4t plus 5 to change only when you change t, else she'll not change, please. Finally, it's going to be 4 e raised to 4t plus 5. सवाल था आपका dy by dx सामग्री रेडी है. सामग्री वहां पहुंचने के लिए रेडी है. It's going to be dy by dt upon dx by dt. So it's going to be 4 e raised to 4t plus 5. That's the area where I fear. क्या फटाफट में ऊपर वाला लेके आओगे, जबकि dy by dt सेकंड पैराग्राफ में है. अपॉन 3 e raised to 3t. ओके, सो 4/3 को हम अलग करते हैं. ही इज आउट ऑफ द गेम. यहाँ मैंने कोई इंडाइसेस दिखा ना, e raised to m और e raised to n. I can see e raised to m minus n. So I am playing e raised to 4t plus 5 minus 3t. It's going to be 4/3 and e raised to t plus 5. Check please everybody. March 15. Just check in यार, चलो. X is equal to e raised to 2t. Differentiating with respect to t, we are going to, did you hear that? Differentiating with respect to t, the dx by dt is going to be e raised to y और y का डेरी, e raised to 2t और 2t का डेरी. टेक केयर. हाथ में हमारे हमेशा d by dx होता है. So the tendency of writing derivative हमेशा d by dx हो जाता है. In spite of knowing कि हम with respect to t कर रहे तो वहाँ d by dx हो जाता है. So finally 2 e raised to 2t. Now y it's e raised to root t. Okay. So differentiating with respect to t, lines छोड़ने का lines. तो dy by dt it's going to be e raised to root t. No. e raised to y और y का डेरी. e raised to root t और root t का डेरी. You expect root t to change only when you change t. So now finally e raised to root t and 2 root t. Sir वो कैसे? Root x 1 upon 2 root x. Root t 1 upon 2 root t. Now finally after things are ready, I am heading for dy by dx. सामग्री तैयार थी. dy by dt upon dx by dt. Worth watching step है. Everybody should be here. So coming back, ये आ जाएगा e raised to root t और नीचे 2 root t. Fine. Done with that. आपने ऑलरेडी एक अपॉन बना लिया था. मुझे कोई इश्यू नहीं है ये लिखने में. नो, dx by dt का आंसर 2 e raised to 2t मैं यहाँ लिख देता हूँ. But then you know most of the people at this juncture, it's not के poor basic maths. I don't blame that. This is a pretty confusing thing. 1 by 2 by 3 वो यार फ्लिप करोगे क्या करो? नहीं बाबा. 1 by 2 के बाद by 3 था. तेरे पास 1 by 2 था ना, वो 2 के बाजू में ही 3 क्यों नहीं लिखा? My argument is ऑलरेडी तो अपॉन बना चुका था ना, उधर ही अपॉन लिखता. dx by dt अपॉन में जाना है, उधर ही लिख. तो कंफ्यूजन ही नहीं है फ्लिप होना कि नहीं होना. So now coming back over here, it's going to be e raised to root t. 2 और t 4 हो गया, root t भी हो गया और e raised to 2t. Oh, I can see something over here. I saw e raised to m, e raised to n. So you all know I am going to make it e raised to root t minus 2t और नीचे रह गया 4 root t. Please check your dy by dx. थोड़ा ending मुझे next page पे नहीं जा पाया because next sum no दूसरा वहाँ पे है. You can always एक और step के लिए भी next page use करना है. Please इस तरह clumsy नहीं करना है. Now I hope things are going in your favor. This is supposed to be tried. No, people should try this sum. U upon v at its best, माने yeah, इससे better no best thing नहीं हो सकता है. We are very close to now finishing, तो please don't miss out anything. X is equal to 4t upon 1 plus t square. It is u upon v. थोड़ी तकलीफ लग रही है लेकिन let's start differentiating with respect to t. The dx by dt it's going to be v square. Okay, fine. Closing worth watching है इसका. 1 plus t square. नहीं, मन में तो मेरा v आया. v dairy. Did you check that dairy? 4t. How would you
डाइजेस्ट दिस थिंग कि यू आर रिक्वेस्टिंग 40 टू चेंज बाय चेंजिंग x, और वो बेचारी चेंज भी होनी चाहिए क्योंकि तूने उसको बंदूक दिखाया। फिर कोई तुझे बंदूक दिखा रहा है जो तुझे दिखाई भी नहीं दे। -40 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सर आपने तो रूल के बीच में ही सब बातें कर दी। वो सेकंड पार्ट है ना, मैं रिवर्स लिख देता हूँ, v डेरी u माइनस u डेरी v, जैसे गया वैसे उल्टा चलेगा। सो -40 इंटू डेरी ऑफ, उल्टा ही देख लेना, 1 प्लस टी स्क्वायर। सो v डेरी u माइनस u डेरी v, बस डेरी में आप 40 और 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो चेंज होने के लिए तो इट हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर, 40 का 4 t का 1 माइनस 40, 1 का 0 2t, प्लीज चेक, 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, चलते रहने का, सिंपल मैथ्स। ब्रैकेट खोली, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2 and 4 8 t and t स्क्वायर अपॉन, चलते रहो, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। So it's going to be 4 minus 4t square upon 1 plus t square the whole square. So I saw 4 common, 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square. That's your d x, क्वेश्चन लिखा हुआ ना, dx by dt। ये एक पैराग्राफ हुआ। 4 मार्क के रे फेब 25, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि और एक बार बैक टू बैक बहुत बार पूछता हूँ। आधा पेपर प्रीवियस अटेम्प्ट का छप जाता है। So make no mistakes. Y is equal to 3, 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay. Differentiating with respect to t, the dy by dt is going. चल. Now, मेरा u upon v एक इमोशनल होता है। मैंने 1 सेकेंड ना, सॉरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक 3 है ना, साइड में रख। 3 बोला मुझे वो झमेले में मत डालो u और v के, मैं बाजू में अच्छे से कड़ी, आपका हो जाए तो बोलना, मैं आ जाऊँ। सो v स्क्वायर चालू हो गया, सुना v स्क्वायर। अब ऊपर v, ओके, डेरी, ओके, u माइनस उल्टा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू द डेरी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली हम जा रहे हैं आगे, 3 तो बारी खड़ा है प्लीज, 1 प्लस टी स्क्वायर, 0 माइनस 2t, लेट्स पुट इट एकदम मेटिकुलसली। मुझे नहीं चाहिए कि एक छोटा साइन मिस्टेक की वजह से आई स्क्रूड अप माय एंटायर 10 मिनट्स का सोल्यूशन एंड देन आई रियलाइज कि आई मेड सम मिस्टेक, और माइनस ऐसी मिस्टेक वापस ढूंढने से नहीं मिलती। -1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, ओके, द होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। आई हैव नो ऑप्शंस बट टू ओपन द ब्रैकेट। आई एम मोर क्यूरियस। -2t क्यूब, टेक योर टाइम, -2t क्यूब। अभी -2t, चेक प्लीज, ये 0 को हटाते ना पेंसिल से, अब 2t को अंदर भेज और यहां से माइनस को भेज, तो -2t, अब माइनस जा रहा है तो प्लस आ रहा है, टी स्क्वायर और 2t मिलके हो गया 2t क्यूब। एक्साइटमेंट फुल ऑन, ये भी चला गया, सॉरी 2t क्यूब था, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो लेट मी जस्ट गो इन वन मोर टाइम दिस स्टेप में। ओके, लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट वन मोर टाइम, इसको भी हटाओ यहां से, -2t एंटरिंग, -2t क्यूब। अब यहां से सेकंड पार्ट में माइनस, लेफ्ट साइड से माइनस घुस रहा है, राइट साइड से 2t घुस रहा है। सो -2t माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर और 2t क्यूब, चेक प्लीज, 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब गॉन, सो इट्स गोइंग टू बी 3 and -4t upon 1 plus t square the whole square. Now somebody agile in the class, in the whole sum, many are, almost everybody I would say, वो बोला सर आपने क्या बोला था, 3 बोला, मैं बाहर रुकती है, आपका झमेला हो जाए फिर मुझे बुला लेना, तो सर वो 3 अंदर गया, -12 हो जाएगा। करेक्ट है, लेकिन लालच ना, इंसान एक लालच का पुतला है, उसे मालूम है इसका अंत प्रूव में लिखा है x और y को आना है, x 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर आंसर में 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स्ट्रा थोड़ा बोनस होल स्क्वायर भी दिख रहा है, उसको मैं काटेगा, मैनेज करेगा कैसे भी, लेकिन मैं x आने की रास्ते को मैं खराब नहीं करेगा। बाई 3 को अंदर डालने से ये -12 हो जाएगा, 4 मेरा छुप जाएगा। So I hope you all are understanding what I'm talking about over here. I can see my entry of x coming over here later on stage पे।
तो मैं इस टर्म की वर्जिनिटी को खराब नहीं करेगा एंड टेक माय वर्ड्स इन द राइट सेंस प्लीज. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर एंड इट्स इन द ट्रू सेंस, इट्स इन द ट्रू सेंस. सो कमिंग बैक ओवर हियर, चीजें तैयार है मगर अभी सब छुपी हुई है, सब बिखरी हुई है. dy by dt अपॉन dx by dt. ओके नाउ मेरा dy by dt तो सामने ही पड़ा है. 3 है माइनस 4t है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर है. और आपका ऊपर आंसर जो था वो 4 था, 1 माइनस टी स्क्वायर था, 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर था. जी आंसर का आंसर. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इट्स नॉट कॉल्ड मगिंग प्लीज, इट्स द प्रैक्टिस. हमारा जमाने में मैथ्स रिपीट रिपीट रिपीट. तेरे जमाने में वन टाइम नो टाइम, नो टाइम नेक्स्ट टाइम. वन टाइम हुआ तो भी बड़ा है हम लोग तो थैंक्स बोलते हैं. वन टाइम हो गया नाइस. कमिंग बैक ओवर, नहीं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, आपका जनरेशन का प्रथा है, स्टिल दे परफॉर्म. दैट्स रियली सरप्राइजिंग एंड इसको ये कोड को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है. कमिंग बैक ओवर हियर, सामने एक्स वाई है और उन्हें इसमें आना है क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना है. सो लेट्स गेट इट. यार बहुत लोग एक्साइटमेंट में ये कर देते हैं. सही एक्साइटमेंट है, नो डाउट अबाउट इट. कोई भी इंसान इसको भावुकता नहीं बोलते, नेचुरल इफेक्ट है, खुशी. आफ्टर सॉल्विंग ग्रिलिंग 2 पैराग्राफ्स का U upon V rule, technically sound, taking care of all the signs and doing all legitimate work over there. Anybody would have enjoyed cutting this. लेकिन काटने से पहले एक बार सोचना, तूने वो x और y के पैर ही काट दिए, वो बेचारे आएंगे कैसे? काटना था, सुना कोई? x और y के पैर ही काट दिए तुमने. उनके पैर में देख क्या है, घुंघरू नहीं है उनके पैर में, 1 प्लस टी स्क्वायर है एक्स और वाई पे, और तूने उनके पैर ही काट दिए और अभी बोलते आओ. तो आप है ना, आपको काटना था तो एक ही काटना चाहिए था. ए स्क्वायर है ना, एक ए काट दे, बाकी ए छोड़ दे, उनके पैर छोड़ दे. अब देख इसमें वो एक्स आ रही है और इसके अंदर पहले एक काम करते ना, लेके तो आते हैं. सो 3 माइनस है, हाँ एक्स आया, ठीक है. इन द ट्राइंगल एक्स आया, वहां फ्रॉम वन, वहां वन बोल देंगे, यहाँ फ्रॉम वन बोल देंगे. नीचे क्या हो रहा है? नीचे आई एम नॉट गेटिंग द फुल वाई बट आई एम गेटिंग अ रीजनेबल पार्ट ऑफ वाई. मुझे इतना तो दिख रहा है मेरे रेड ट्रेपीजियम में, तो उसको मैं y अपॉन 3 करके ला सकता है ना, इधर y अपॉन 3 करके इधर ला सकता है. सो आई होप यू गॉट इट. मैं बस खाली फ्रॉम वन बोलूंगा. वो वन में मैंने ये एक्स और वाई में कॉपी किया होगा ना शुरू में, तो वहां मैं वन बोल के यहाँ पे फ्रॉम वन बोल दूंगा, नथिंग एल्स. आंसर इज माइनस 9x अपॉन 4y. सर जी कैसे? डोंट आस्क मी दैट कैसे. फ्लिप हुआ ना, 3 और 3 9, 9 इंटू माइनस एक्स, माइनस 9x अपॉन 4y. That is why, that is my dy by dx, and I would like to know, make it sound big. It's proved. Man, it's a loud signature. Give me my 4 marks. Now moving to the next one. Okay. Fantastic sum में देख ले, नहीं तो बहुत लोग तो क्या टाइम पास करते हैं इसमें. March 23. Not a bad idea. Y is equal, सर जी वो x चालू नहीं किया आपने. Differentiating with respect to x, with respect to t. हमने तो मन ही मन दिमाग भी बना लेता है. dy by dx करने के लिए dx by dt करेंगे, dy by dt करेंगे, फिर रास्ता बना के dy by dx पे पहुंच जाएंगे. परफेक्ट है, परफेक्ट है. You are on the correct lines, but then there was a magic in that. आपने जब उतना सोचा, मैंने तब है ना y इक्वल टू टी रेस टू टी देखा, एंड इट इज सो कॉमन. टी रेस टू टी, एक्स रेस टू एक्स, सॉरी माई एक्साइटमेंट, कि मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू टी लॉग टी कर गया जब आप वो सब फ्रेम कर रहे थे. और मैं देखा टी लॉग टी में मस्त में x आके बैठ गया. चेक. अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, माने वो जो वाया रास्ता था ना, बिकॉज x एंड y वर नॉट कनेक्टेड इन ऑल दिस सम्स, दे वर कनेक्टेड वाया दैट थर्ड एजेंट पैरामीटर t.
करके वी हैड टू ऑलवेज टेक द लॉन्ग रूट dy by dt dx by dt and then come to dy by dx. बट मेरी ये हरकत से log y t log 2 t log t and x jumping in that place. Can you see that line? My y and x are now bridged directly. So I don't want the agent now. ऐसे भी मुझे agent नहीं दिख रहा है इसमें. Differentiating with respect to x 1 upon y, y का डेरी भूल गया, x का तो 1. इससे सिंपल क्या लाएगा तू? y डैश इक्वल टू y. साधु बनने का समय आ गया था. dy by dx हो गया, माइनस y हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, प्रूव हो गया. Do check this sum. Rewind, play. Write it 2-3 times. ये मौका हाथ से गवा. This is the point where he is going to make you stand apart from the men. Will be separated from the boys. Women will be separated to me. Rani of Jhansi will be separated from the normal girls. When you project this kind of solution, that time he understands कि तू क्या prepare करके आया. बाकी तो वो 10 पेपर में वही सम देख रहा है, dx by dt, y में he is the person is logging out. पहले लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, फिर बाद में जाके रास्ता बना रहा है dy by dx dy by dt अपॉन dx by dt, कट होके उसका ही आंसर आ गया. मैंने 1.5 पेज लंबा सम किया, तूने आधे पेज में वो भी लाइन छोड़ छोड़ के आधे पेज में खत्म कर दिया. So these are the points where you need to score. Now we have got similar March 22 sum. So x is equal to root of 1 plus u square and y was log of, money did not have great brains for all this. या ऐसा मेमोरी नहीं करना है. देख y में x की झलक है. देख x is what? root of 1 plus u square. So you could have always written this. ये रूट को हटा के तू यहाँ x square लिख सकता था और 1 plus u square में इसको पुश कर सकता है. 1 बोल देते हैं. y is equal to log, चलो व्हाइट पैच में देख, एक्चुअल क्वेश्चन में y देख, उसमें x की छवि दिख रही है. तो why you want to go the long route to reach to dy by dx? dx by तू करेगा du, फिर dy by du करेगा and then you are going to reach to dy by dx by dy by du upon dx by du. Gosh, सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है, बट वही रास्ता है if you follow the books. फिर उन्होंने ऐसा क्यों दिया था? क्यों x का इमेज, x का शेडो उन्होंने y में देख के रखा है? फॉर यू टू चेक इट आउट. खाली वो छपरी उठा के x स्क्वायर कर और सीधा वो नीचे घुस रहा है लॉग में. सो लॉग x स्क्वायर, चेक. ओह माय गॉड, पावर फॉल्स डाउन. एंड देन नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, माने पब्लिक dy by du dx by du, वो भी इफ दे आर गुड इन द डेरिवेटिव्स. नो, सब लोग को डेरिवेटिव्स इतना परफेक्ट थोड़ी है. So now differentiating with respect to x, the dy by dx is equal to 2 upon x. Sum is over, please. And with such solutions देखते हैं ना, उन लोग को लगता है my goodness, commerce have got real gems. ऐसा उनके मन में आ ही जाता है. So don't miss out this two crazy sums. And then this two crazy sums था तो आपके टेक्स्ट बुक में और एक ऐसा था जो अभी नहीं पूछा है. So मैंने my choice डाला है क्योंकि वो दो है और उसके बाद ये भी है. तो अभी ही द क्वेश्चन सेटर में से कि चल यार वो दो अगर वो पास पेपर देखा होगा तो ही मे हैव प्रिपेयर्ड, लेट मी आस्क हिम दिस वन नाउ. सर आप ही सेट कर लो. नहीं नहीं रहने दो, मैं ये काम में ज्यादा खुश है. y is equal to 2u plus 1 upon u. So y is equal to 2 root x. Did you see that? चल y का 2 raised to u plus 1 upon u. u plus 1 upon u में मुझे x की छवि दिखती है, रूट x दिखता है. वो स्क्वायर को वहां ले, जैसे उसमें तूने छपरी को वहां लिया था, इस बार स्क्वायर को वहां ले. रूट x सीधा आ गया. सो डिड नॉट प्रोड्यूस द स्टेप्स आल्सो. यू कैन जस्ट से 1 एंड यहाँ पे यू कैन से फ्रॉम 1. नाउ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेक log because 2 raised to root x है ना, तो if you take log it will be more comfortable. Log y is equal to root x log 2. चलो differentiating with respect to x. Now I don't need that u parameter. Agent क्यों चाहिए? See here the story of agent got over. Now y और x अपने आप ब्रिज हो गए. तो now they are self independent to reach to dy by dx. In fact this is a perfect stage. Y is a function of x. तो अब अपने हमें एजेंट नहीं चाहिए, वो एजेंट गया बाजू में. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon y और y का डेरी.
log 2 बोला मैं खड़ा रहता हूँ, सर क्यों खड़ा रहता हूँ, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, नहीं log 2 कांस्टेंट ना, सर आपको कैसे पता चला, हाथ लगा के पता, पागल है क्या, log 2 में कोई x फंक्शन, इज देयर एनी वेरिएबल इन log 2, log 2 इज अ परफेक्ट नो नंबर जस्ट लाइक 2, सो इज कांस्टेंट, तो खाली रूट x का डेरिवेटिव होगा, सो रूट x का डेरिवेटिव हो गया 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, सॉरी, सो फाइनली मैं साधु बन गया, dy by dx is equal to y log 2 upon 2 root x, and that's your textual answer, please. 3 sums, one of my choice, and probably that should be the next one, because उसने एक पहले पूछा, फिर next time उसने कुछ और पूछा, और third time he is supposed to ask you this whenever, either तेरे को या तेरे बाद वाले लोग को, ये तो आना ही है. Now basic closing कर लेते हैं. Sorry to take your 10 more minutes extra, but probably logic में थोड़ा time हमारा ज़्यादा गया, but it was माने needed. फिर बीच में थोड़ा technical glitches आ गया due to some unwanted no factors, but should be taken care no in the next Zoom. Coming back over here, MCQs कभी कभार बहुत costly turn out हो जाता है. हम एक एक दो दो मार्क बचाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं, कितने फ्रेंडों की मिन्नतें करते हैं, बट अल्टीमेटली हम MCQ इग्नोर कर जाते हैं. बट कमिंग बैक ओवर हियर, चल सिंपल आपका टेक्स्ट बुक में, अब सॉरी क्वेश्चन पेपर में ही वर्किंग होगा इसका. सो इफ यू मिस्ड आउट फेब 25 मॉडरेटर सेशन सेक्शन 1 मैंने किया था, फुल पेपर मैंने लाइव सॉल्व किया था. व्हाट ही वांट्स टू सी फ्रॉम, चेक इट आउट प्लीज. y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई dx 4x प्लस 0, a स्क्वायर भी कांस्टेंट, 2 स्क्वायर तो 4 है वो भी कांस्टेंट, तो आंसर हैज टू बी 4x, ऑप्शन नंबर ए. बट हाउ टू राइट दिस आंसर, चेक दैट सेशन. जुलाई 24 वापस वही dy बाई dx, देखना जुलाई 23 मार्च 23 सडनली फिर जुलाई 24 रिपीट्स dy बाई dx. ओके log 2 0 हो गई, 5 भी 0 से log 2 कांस्टेंट, कोई x दिख रहा है उसमें, सो आपका dy बाई dx में खाली आया 4x, आंसर 4x हो गया. ओके y इज इक्वल टू e रेज टू log x है, ठीक है, तो y डैश शुड बी इक्वल टू e रेज टू log x और फिर log x का डेरी, e रेज टू y और y का डेरी, e रेज टू log x और log x का डेरी 1 upon x. So you can say the answer has to be that, and I can see the answer A. But now word of caution, आज ये आंसर है ना, कल ये नहीं होगा, 1 होगा. चला देखते हैं. y is equal to e raised to log x to the base e है. All the logs what they say in differential integral calculus, when the base is not mentioned, the base is e, or else they have to mention the base if any other base was happening. बट आप जो भी log x का डेरी 1 अपॉन x बोल रहे हो, वो सारे logs टू द बेस ही होना चाहिए, तो ही डेरी 1 अपॉन x होगा, नहीं तो यू हैव टू गिव सम नो चेंज ऑफ बेस रूल का ट्रीटमेंट ओवर देयर. सो दैट्स थोड़ी हाई फाई, वो बातें नहीं करनी है. नाउ log में एक रूल था, इफ एनीबॉडी नोस, log में एक रूल है, इफ इट इज a रेज टू log x और उसका भी बेस a है, तो ये सब जाता है और आंसर खाली x रह जाता है. कैन आई जस्ट प्रोनाउंस दैट वन मोर टाइम. log में एक रूल है, a रेज टू log x से टू द बेस a है, माने ये बेस भी a है और log का बेस भी a है, तो ये जाता है और x रह जाता है. एंड आई सॉ अ परफेक्ट सिनेरियो ओवर हियर. आपका ये सम देखो, y इज इक्वल टू e रेज टू log x है और वो बेस e है, so they had to go and the y was actually only x. So next time they may not give you this answer and they may give you only 1 over there. और आपको ये रूल नहीं मालूम था, तो आप तो ढूंढ रहे थे e रेज टू log x और log x का डेरी 1 अपॉन x. ये साला किधर है, प्रिंटिंग एरर है. उन्होंने log का रूल लगाया, फंक्शन को y इक्वल टू x बनाया, बिकॉज बेस भी e है और log का बेस भी e है, वो जाती है x रह जाती है. सो फाइनली यू आर रीडिंग y इक्वल टू x, सो y डैश आपका 1 हो गया था. सो नेक्स्ट टाइम दे मे पुट 1 ओवर देयर. नाउ ओवर हियर y is equal to log of e raised to x upon x square चल रही है. Can you just give me the confirmation, because I don't know the Zoom का timing, is that logged or it just gets out मानने. So okay, सुजल बोल रहे हैं कि it's happening. So let's take the benefit of last 2 or 3 minutes, हम जो भी कर सकते हैं. It's getting over with this one जो आपके स्क्रीन के ऊपर है. दृशा बेन प्लीज, दृष्टि बेन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी.
y इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b है. log ऑफ a अपॉन b बोला और खोला नहीं तो अजीब लगा रही. So what is that? Believe me, log a minus log b, log a upon b has been used throughout the year in SYJC. log a minus log b, log of a upon b. ठेके ठेके यूज हुआ है एक्सेप्ट मैट्रिसेस लॉजिक हर एक जगह. सो मैंने खोला तो और नए रूल्स आ गए. पावर फॉल्स डाउन. log e is तो 1 बिकॉज बेस ई था. -2 log x हो गया. मैं बोला तो और भी सिंपल. अब y डैश मारा मैंने. So it's going to be 1 x का 1 -2 खड़ा है log x का 1 upon x. So 2 upon x. Cross multiply क्या x minus 2 upon x. Do we have the answer x minus 2 upon x? Check that please. सब कुछ पेपर में ही कर रहे हैं. पेपर माने क्वेश्चन पेपर में. एंड देन इन द आंसर कैसे लिखना है. डू वॉच द मॉडरेटर सेशन. सर आप जबरदस्ती कर रहे हो. नहीं, इच्छा आपकी है भाई. हम कौन होते हम लोग जबरदस्ती करने वाले. बट कमिंग बैक ओवर हियर, डेरिवेटिव ऑफ fx is a raised to x. नहीं सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन a raised to x is x. क्या उल्लू बना है. he is treating a raised to x as a raised to n a raised to n minus 1 x a raised to x minus 1. पागल है क्या. a raised to x का डेरिवेटिव तो हमको मालूम है a raised to x log a. so this was false. okay, no, don't get tempted. power falls down. log ने x को देखा, x का कोई पावर नहीं था. If it is that kind of scenario, ये जानबूझ से पूछा था आपकी आप टेम्प्ट हो जाओ. ये ऐसा नहीं है. log ने x को देखा, x का पावर 2 था, उसको नीचे लिया. चल बता अभी. log ने x को देखा, x का पावर क्या है. कुछ भी तो नहीं. the whole is square. so वो पावर नीचे नहीं आता है. log ने x को देखा, x का पावर को नीचे लिया. यहाँ तो x के पावर को था ही नहीं. so now how we are going to solve the sum? oh that's simple. y dash. चल मान ले y square है. Let's take it as y square. 2y और y का डेरी, 2 log x और log x का डेरी. So answer is 2 log x upon x. So let me just show you once again. y आपका log x the whole square है. तो let us say कि इसको आप u ले लो. अभी आपने y dash शुरू किया तो क्या किया होगा. 2u और u का डेरी माने 2 log x और log x का डेरी. So answer becomes 2 log x upon x. fill in the blanks है. You have to fill in the blanks. How to write fill in the blanks वो भी वहां बताई है. So I think with this yes, with this मैं आपको solution फाइल भी दिखा दूं. See that's the way. So ये solutions ऐसे देखकर है ना बड़ा मन हो जाता है यार. आप उन भी इसी तरह लिखेंगे यार. माने handwriting is not the criteria. Please believe me, my handwriting is very bad. But because I've been leaving the lines and placing it in such a way with the colorful page background में, but ठीक है, that should not add some value, great value to the solutions right now. But एक लाइन मेंटेन किया है, लाइंस छोड़ी है तो बढ़िया लग रहा है. My simple suggestion to all who are watching now and all who are the rest of the people who are later on, maybe they are going to watch depending on your views. This is not because I have brought it to you. This gives you the complete catch of the topic. And the best part of this is with what sums what they like to put in the paper.